Welcome to the channel again, and in this video I'm going to tell you Django 5.2 release हो चुका है. That was on like around 2nd of April 2025, and Django has rolled out some really interesting features that you should know if you are like Python Django developer. And literally Django is killing. And बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर लेकर के आया Django इस बार, एंड कुछ चीज़ें डेप्रिशिएट भी करी हैं. So if you are going to like read this entire documentation, that doesn't make sense because it's like kind of a little hard. So for this video I have just summarized whatever like feature Django has rolled out in this particular release. I'm going to tell you. Okay, so let's start with a very interesting video because literally Django has nailed this 5.2 release. Also, if you're like new to this channel, do consider subscribing to this channel because I post mostly like Python Django stuff, and you can definitely go and check out my channel. I literally have added a lot of videos on Django. You can definitely learn a lot of things, and for other things I will like let you in the next part of the video. Okay, so now let's start. The first very interesting feature that Django has rolled out is called as shell model. So what usually happens, let's say मेरे पास में multiple apps I have created. First of all, let me walk through. This is a very core project. मैंने एक core करके project बनाया हुआ है, and in this core project there is a app that is called as home. It's a very basic fundamental structure. Settings में जाओगे, you just see a home app, nothing more than that. Okay, so now what will happen is, so let's say मेरे पास में multiple apps है. Okay, I have like let me open Miro as well. So I have like multiple apps. Okay, so now in that multiple apps what usually happens is, जब भी मैं shell के अंदर जाता हूँ तो मेरे को हर मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ता है. सो व्हाट आई हैव टू डू इज, लेट्स से इफ आई गो इन शेल, लेट्स मेरे पास में कुछ बहुत सारे ऐप्स बने हुए हैं. लेट्स से आई हैव अ ऐप दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर, देन आई हैव अ प्रोडक्ट ऐप, देन आई हैव अ इनवॉइस ऐप. ऐसे बहुत सारे हैं, हर एक के अंदर कुछ मॉडल्स पड़े हुए हैं. तो मेरे को अगर इंपोर्ट करना पड़ता था तो मैं जाता था python manage.py, शेल लिखता था, उसके बाद में मॉडल्स को इंपोर्ट करता था फ्रॉम लेट्स से ऑर्डर्स डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ऑल, ऐसे करता था. फिर कोई और मॉडल इंपोर्ट करना था पड़ता था, तो सब कुछ मुझको इंपोर्ट करना पड़ता था. बट नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज अब क्या होता है, जैसे आप Django python manage.py शेल करोगे तो जितने भी मॉडल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे आपके Django शेल के अंदर. आपने जितने भी ऐप्स को अपने settings.py में रजिस्टर करके रखा होगा, ऑटोमेटिकली सारे मॉडल्स इंपोर्ट हो जाएंगे. सो लेट्स से मैंने अगर यहाँ पे कोई मॉडल क्रिएट करके रखा हुआ है, लेट्स से होम मॉडल करके, एंड लेट्स से मॉडल्स डॉट मॉडल, और ये मेरा एक छोटा सा मॉडल है. एंड इफ़ आई गो नाउ आई कैन डायरेक्टली सी 7 objects imported successfully. You can see directly see it. So this is the best feature. My like जब भी आप Django shell में जाते थे तो डिबग करना इज़ वेरी हार्ड कि आप हर एक मॉडल को कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, then you have to recognize it. You can have directly just imported 7 models automatically. Okay, so this is one of the best feature. Now let's talk about the second feature that Django has given in 5.2 release, that is called as composite key. सो कंपोजिट की का मतलब क्या होता था, लेट्स से इफ़ यू डोंट नो लाइक व्हाट एग्जैक्टली कंपोजिट की मीन्स, सो इट्स अ डेटाबेस कॉन्सेप्ट. सो डेटाबेस में होता क्या है, वी हैव लाइक फॉरेन की, प्राइमरी की एंड अदर लाइक कीज आर देयर. सो कंपोजिट की इज समथिंग दैट कंबाइंस लाइक मल्टीपल कीज मिल करके एक प्राइमरी की बनाती हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट की. सो कंपोजिट की का मतलब क्या होता है, 2-3 कीज मिल करके यूनिकली आइडेंटिफाई एक रिकॉर्ड को करती हैं. सो लेट्स से मेरे पास में एक टेबल है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर है एंड प्रोडक्ट है, एंड देन देर इज अ टेबल दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर आइटम. ओके, एंड इन द ऑर्डर आइटम देर इज अ टेबल दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर, देन वी हैव अ प्रोडक्ट टेबल एंड लेट्स से क्वांटिटी है. तो मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर आइटम में ये दोनों यूनिकली आइडेंटिफाई हो, मतलब किसी भी ऑर्डर आइटम की टेबल में एक ऑर्डर और एक प्रोडक्ट सेम बार नहीं आ सकते हैं. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफायर बनाता था और मैं फेच भी नहीं कर सकता था. लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड ऑर्डर आइटम करके मैंने एक टेबल बना ली. ठीक, नाउ लेट्स से मॉडल्स डॉट मॉडल करके है, एंड यहाँ पे क्वांटिटी प्राइस ये सारी चीज़ें हुई हैं, एंड साथ ही साथ में यहाँ पे एक ऑर्डर करके फील्ड है दैट इज़ मॉडल डॉट ऑर्डर, एंड यहाँ पे एक प्रोडक्ट करके है इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट प्रोडक्ट करके है. सो नाउ वॉट आई कैन डू इज़, मैं यहाँ पे दोनों को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूँ, अदरवाइज मेरे को यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफायर ऐड करना पड़ता था. बट अब मैं यहाँ पे कंपोजिट की को ऐड कर सकता हूँ इन Django. सो लेट्स से आई गो इन क्लास मेटा, एंड मेटा ऐड करने के बाद में प्राइमरी की आई कैन गिव इट. सो दिस विल बी माई प्राइमरी की एंड मॉडल्स डॉट कंपोजिट
प्राइमरी की composite, I think it's not coming, but it's available. So composite primary key will be, भाई जो भी आपका नाम देना है वो आप दे सकते हो, that will be like order and product. So this is you can use composite primary key ताकि इन दोनों को uniquely identify करा पाओ. This is really interesting thing that Django has given us. Now next जो चीज़ है दैट Django के पास में जो फीचर आया है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्स. जब भी आप यहाँ पे ये करते थे लेट्स से मेरे को यहाँ पे एक मेरे पास में एक ऑर्डर मॉडल है, लेट्स अंडरस्टैंड. सो आई जस्ट हैव टू लाइक और यू कैन से मैंने कोई ऊपर मॉडल क्रिएट करके रखा हुआ है होम मॉडल, ठीक है. सो नाउ होम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर करूँगा, क्यू मैंने लगाया यहाँ पे, क्यू में टाइटल मैंने डाल दिया होम और डिस्क्रिप्शन ये मैंने डाल दी. तो ये इस तरीके से काम कर जाता था, बट फिल्टर में ये काम करता था क्यू मॉडल, बट ये एक्सक्लूड में काम नहीं करता था. सो लेट मी इम्पोर्ट दिस ऑल्सो, तो ये सिंटैक्स का सही हो जाए. सो ये एक्सक्लूड में नहीं काम कर सकता, बट नाउ इन Django 5.2 आप एक्सक्लूड में भी क्यू को ऐड कर सकते हो. सो दिस इज़ वन ऑफ द नेक्स्ट फीचर अबाउट Django 5.2. नेक्स्ट जो फीचर है, लेट्स से आई हैव अ होम मॉडल एंड मैंने यहाँ पे लिखा है होम डॉट मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट वैल्यूज़. मैं करता हूँ ओके एंड मेरे को यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लेकर के आनी है. लेट्स से मेरे पास में टाइटल डिस्क्रिप्शन लेकर के आना है और भी अगर इसमें कुछ फील्ड्स हैं, सो लेट्स मी इंक्लूड दैट एज वेल. ओके सो डिस्क्रिप्शन है एंड लेट्स से क्रिएटेड आर्ट है. सो अब मेरे को इसका सीक्वेंस नहीं पता है कि भाई ये कभी भी कुछ भी दे सकता था, बिकॉज जब आपका क्वेरी सेट रिटर्न होता था तो आपका कुछ भी इस तरीके से दे सकता था. कभी भी आपका डिस्क्रिप्शन पहले दे देगा ऐसे, फिर उसके बाद में कभी टाइटल पहले दे देगा, कभी क्रिएटेड ऐड पहले देगा. तो ये कंसिस्टेंट नहीं रहता था कि क्या पहले आएगा. बट इन Django 5.2 अब क्या होगा, जो भी आपका रहेगा वो आपका सीक्वेंस वाइज आएगा. मतलब अगर आपने पहले टाइटल लिखा हुआ है तो टाइटल पहले आएगा, ऐसे आएगा, टाइटल पहले आएगा, उसके बाद में आपका डिस्क्रिप्शन पहले आएगा, उसके बाद में आपका क्रिएटेड ऐड पहले आएगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द नेक्स्ट फीचर दैट Django 5.2 ने फिक्स किया है कि अभी भी आप कंसिस्टेंट रहोगे. मतलब एज अ डेवलपर आपके पास में कोई ऐसी चीज़ नहीं आने वाली जो कि आपको नहीं पता हो. नेक्स्ट जो चीज़ है कि जो है आपका जो रिस्पॉन्स साइकिल होता था वो उसको उसने Django ने बहुत इन्हांस किया है. सो लेट्स से इफ आई गो इन इंडेक्स एंड लेट्स आई गो रिक्वेस्ट, तो मेरे पास में यहाँ पे मेथड्स होते थे ना, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट है, या फिर रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पास है, मतलब जो भी चीज़ें थी. तो अब देयर इज अ न्यू रिक्वेस्ट मेथड दैट Django हैज़ एडेड. इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड की जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हो इफ़ रिक्वेस्ट डॉट इज सिक्योर. तो ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा कि आपका जो मेथड आप कॉल कर रहे हो वो सिक्योर है कि नहीं. अगर सिक्योर है तो फिर आप यहाँ पे सिक्योर वाला काम कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हो. और उसके बाद में अगर आपको चाहते हो कि यहाँ पे ये यू कैन से वैलिड जेसन रिस्पॉन्स ही करे, तो यहाँ पे आपके पास में और मेथड भी आ गए, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट एक्सेप्ट्स एप्लीकेशन जेसन करके. मतलब अब ये सिर्फ और सिर्फ जेसन ही को ही एक्सेप्ट करेगा, ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. दिस इज़ वन ऑफ द नेक्स्ट फीचर दैट Django 5.2 ने रिलीज़ किए हैं. अगले जो फीचर Django 5.2 ने रिलीज़ किए हैं दोज आर कैशिंग, दोज आर स्पेसिफिक टू कैशिंग थिंग. तो अब क्या होता था, लेट से मेरे पास में एक मेथड है, तो मेरे को क्या करना पड़ता था, मेरे को यहाँ पे @cache पेज करना पड़ता था. कैश पेज 16 15 जो भी आप दे सकते हो. बट अब क्या कर सकते हो, अगर आपको पूरे Django में कैशिंग इंक्लूड करनी है, सो यू कैन गो इन मिडिलवेयर डायरेक्टली एंड यहाँ पे आप कैशिंग मिडिलवेयर को ऐड कर सकते हो. सो इफ़ यू गो हेयर एंड जस्ट टाइप Django.middleware.cache, Django.middleware.cache, उसके बाद में अपडेटेड कैश मिडिलवेयर. सो दिस इज़ द नेक्स्ट फीचर. अब उसके बाद में जो आपके ORM रिलेटेड चीज़ें हैं उन चीज़ों को भी Django ने काफ़ी ज़्यादा फिक्स किया है. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर फीचर्स दैट Django इज़ कीप ऑन इम्प्रूविंग. एंड कुछ एक दो चीज़ें हैं फॉर्म से रिलेटेड, सो दोज Django हैज़ फिक्स्ड. So those are some of the features that Django has like added. And उसके अलावा कि कुछ MySQL के भी चीज़ें, उन सब चीज़ों को Django ने फिक्स किया है. So I hope this was a video about like 5.2 release. And
Also, one more very important thing, if you want to become a complete Python Django developer जिसको 2% of the Django developer बन पाए, for that reason I have launched my course that is called as Job Ready Python Full Stack Advanced course. And in this course let me tell you what we are teaching you, because in this current world, if you don't know these technologies like Rabbit, MQ, Kafka, Docker, Redis, Elasticsearch, Kibana, WebSockets, प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय करते हैं, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ गुड जॉब्स. सो इन दिस कोर्स आई एम ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप, बिकॉज इस कोर्स का मेरा मेन मोटिव ये है कि जो भी मैंने अपने 4 साल के अंदर सीखा है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस कोर्स के अंदर सिखा पाऊँ. सो व्हाट आई हैव डन इज़, इस कोर्स में जब आप जाओगे जॉब रेडी वाले कोर्स में, इसमें आपको हर एक वो चीज़ सिखाई जा रही है. हम बेसिक्स ऑफ पाइथन से लेकर के एडवांस ऑफ जैंगो तक जा रहे हैं. उसके बाद में आपको इलास्टिक सर्च, काफका, रैबिट एमक्यू, फुल टेक्स्ट सर्च, कैसे कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेसेस को डिज़ाइन करते हैं, ऑथेंटिकेशन हो गया, वेब स्क्रैपिंग के प्रोजेक्ट हो गया. बिकॉज आई बिलीव कि अगर आप प्रोजेक्ट्स के साथ साथ में चीज़ों को करोगे तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंगली चीज़ों को आगे लेकर के जा पाओगे. सैलरी हो गया, रैबिट एमक्यू हो गया, काफका हो गया, डॉकराइज हो गया, इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो गई, चैनल्स हो गया, लोड टेस्टिंग हो गया, फुल फ्लेज ई कॉमर्स एप्लीकेशन, रेस्ट फ्रेमवर्क, सीरियलाइजर, मिक्स इन, ऑथेंटिकेशन, जैंगो, मॉडल, व्यू सेट, बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं. एंड साथ ही साथ में ये जो कोर्स है ये आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट के साथ में आता है. हर वीकली हमारी डाउट सॉल्विंग सपोर्ट होती है. मतलब अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, आई विल हेल्प यू. सो दिस वॉज अ वीडियो. अगर आपको कुछ और चीज़ें चाहिए सो यू कैन गो एंड चेक आउट. एंड अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है वीडियो का सो जस्ट गिव मी, आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट वीडियो कम्स वेरी सून. So let's meet you in the next video. Goodbye and really thank you.